Hello everyone, welcome back. So today I'm back with another good stock which can double your money in upcoming times, and as the company has multiplied its net profit many folds, so there might be an opportunity that we shouldn't miss, and the stock price can test that level again which it has tested when the profit was double with respect to the previous financial year. And the same thing is happening again. So let's find out the structural changes that has been going on in the fundamentals and financials of the stock along with the technical parameters by which we will decide the entry and exit point for the stocks. So the stock which I am talking about is Motilal Oswal Financial Services, which was primarily indulged in the brokering services we all know, and now it is actively giving its exposure to the other businesses like financial services, particularly NBFC, non-banking financial services. So if we talk about the market capitalization of the company, so we can see 11,903 crores is the market cap. It is a small cap company, okay. And अगर हम पी रेशियो की बात करते हैं then पी रेशियो इज 9.04, मतलब कि पी रेशियो काफी कम है. अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो दिस ईयर इट हैज गिवन अ रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 35%. इट इज tremendously good thing, and return on equity is 20% above is a very good thing, and the stock is giving average return on equity of 20%. 5 year average, if we look at the 5 year average figure, then it is 20%. मतलब 5 साल से तो 20% दे रहा है और इस ईयर 35% का ये रिटर्न ऑन इक्विटी इसने दिया है. इफ यू टॉक अबाउट ईवी एबिडा रेशियो, enterprise value by earnings before interest, tax, depreciation and amortization, then it is 6.84. It is really really good. If we talk about the EV EBITDA ratio, then less than 10 is really a good figure, और यहाँ पे तो हमें 6.84 का EV EBITDA देखने को मिल रहा है because the earnings is comparatively more high, and the according to the enterprise value. ठीक है. उसके बाद अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो डिसेंट डिविडेंड यील्ड भी देती है अपने शेयर होल्डर्स को. प्रमोटर्स होल्डिंग्स आर गुड इनफ. So furthermore, if we compare the pros and cons of the company, so for the con side we have nothing but the price to book value is 3 times, approx 3 times. So this is nothing, but if we compare the any private sector entity with public sector entity, then we have to pay a premium for the brand value. So for the brand value we have to pay a premium, and that's why the price is greater than the book value. So if we talk about any public sector bank, the book value is generally approx the price value, approximately a little bit up or down. But if we talk about the public private sector entity, then we have to pay a premium of certain amount, and that's why the book value is lower in comparison with the price. So this is the thing. And if we talk about the pros, then we have a whole lot of pros to invest or to trade in this company. And if we I can show you one thing, okay. So if we talk about the profit and loss statement, so it has doubled its profit. No, not doubled. It has multiplied its profit many folds. You can see the last quarter the profit was approx 183 crores, and if we talk about this financial year, the profit has multiplied many folds. 1245 crores का तो इस ईयर का इसका एनुअल प्रॉफिट आया है. उसके बाद एक और चीज मैं आपको बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2017 में द प्रॉफिट वाज अप्रॉक्स 360 करोड़, एंड द नेक्स्ट ईयर इट हैज डबल्ड इट्स प्रॉफिट, अप्रोक्सीमेटली डबल्ड. देन व्हाट the share price reflected was okay, the share price reflected in this way, you can see. So 1594, मतलब अप्रोक्स 1600 का इस वक्त इनका शेयर प्राइस हो गया था जब ये 600 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी. अपने प्रॉफिट को डबल किया था इसने, और अभी तो 12, मतलब उससे भी डबल का इनका प्रॉफिट है, तब ये यहाँ पे 791 पे ट्रेड करना है. तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, वी कांट अफोर्ड टू मिस इट एक्चुअली. सो अगर हम बात करते हैं इसके, और अगर फाइनेंशियल चेक करें हम अगर, तो बैलेंस शीट की अगर बात करते हैं तो इट हैज कंसिस्टेंटली द प्रॉफिट, consistently the promoters has been growing their capital, the promoters has been growing their reserves. तो देख सकते हैं 932 करोड़ से बढ़ करके यहाँ पे 4400 करोड़ के आसपास तो इनका रिजर्व्स हो गया, promoters का पैसा जो होता है. So and if you look at the if you look at the borrowings of the company, so borrowings के नाम पे यहाँ पे debt free company थी, but यहाँ से borrowings आनी शुरू हो गई. So this is not a bad thing actually. This is for the business purpose, and this is the fund which they use for the business, for their businesses, to give loan as they work in NBFC space also. So this is the thing, this is the funds that they raise from the public, and the same they will use as a business of NBFC.
ओके, सो ये यहाँ पे फंड्स जो भी हैं इनको ये एनबीएफसी की तरह यूज करते हैं, इनको लोन की तरह प्रोवाइड करते हैं बाकी लोगों को, और उनसे इनका पैसा आता है। तो ये ब्रोकिंग और एनबीएफसी बिजनेसेस में भी है। ओके, उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं, इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स चेक करते हैं, तो देर इज एन इंटैक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देख पाएंगे। प्रोमोटर्स के पास मैक्सिमम यहाँ पे शेयर्स हैं, मैक्सिमम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ शेयर्स हैं प्रोमोटर्स के पास। उसके बाद एफ आई आई डी आई एस के मामले स्ट्रॉन्ग हैंड्स में बाकी सारे हैं। और 15% अगर हम पब्लिक की बात करते हैं, तो ये जो दो लोग हैं यहाँ पे पब्लिक में, या नवीन अग्रवाल एंड रजत रजगड़िया, सो दे हैव ऑलमोस्ट 6 to 7% ऑफ शेयर होल्डिंग्स। तो पब्लिक के पास बचता क्या है, तो ऑलमोस्ट 7-8% की शेयर होल्डिंग पब्लिक के पास है, विच इज अगेन इज अ गुड थिंग। एंड इफ यू मूव our concentration to the technical chart patterns, so there is an opportunity, first of all, यहाँ पे देखिए आप एक चीज, यहाँ पे इसने ये ट्रायंगल टाइप यहाँ पे पैटर्न बनाया था। मैंने यहाँ पे पोजीशंस कहीं लिया था, मैंने 2 ट्रेड लिया था। मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या ट्रेड लिया था और कैसे लिया था। सो बेसिकली इट वाज फॉर्मिंग लाइक अ ट्रायंगुलर पैटर्न। तो ट्रायंगुलर पैटर्न में क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बियर्स नीचे लेकर के आए, सिंपली आप इतना समझे, बियर्स यहाँ पे नीचे लेकर के आए, बियर्स वे स्ट्रॉन्ग, बुल्स को ऊपर लेकर के गए। तो यहाँ पे ये देखिए, इट इज मेकिंग लोअर हाइज एज वेल एज लोअर हायर लोज। यू कैन सी लोअर हाइज एंड हायर लोज। सो इसका मतलब क्या है, तो बुल्स वे आर एक्टिव, बियर्स वे आर एक्टिव, देन द बुल्स ओवरपावर्ड एंड बियर्स वे आर एक्टिव, द बुल्स। तो यहाँ पे बेसिकली एक फाइट चलती है बुल्स एंड बियर्स के बीच में। यहाँ पे देखिए, पहले बियर्स आए, सेलर्स ने मार्केट को नीचे लेकर के गया सेलर्स, उसके बाद बुल्स आए, फिर वापस से ऊपर लेकर के गए, उसके बाद फिर से सेलर्स आए, नीचे लेकर के गए, बायर्स आए। तो ये जो फाइट चलते चलते फाइट एक हॉल्ट पे आ जाती है, एक यहाँ पे एक हॉल्ट करती है फाइट यहाँ पे, और चलते चलते यहाँ पे बीच में कहीं आकर के फाइट रुक जाती है। मतलब यहाँ पे ना बियर्स जीत रहे हैं और बुल्स जीत रहे हैं। तो अल्टीमेटली होता क्या है, सो अगर कोई भी ट्रेंड लाइन एक ब्रेक करती है यहाँ से, तो उस साइड में हम एक्टिवली पोजीशंस बनाते हैं। तो मैंने पहले कि यहाँ पे पोजीशंस बनाई, छोटा सा मैंने टारगेट यहाँ पे लिया, फिर जब यहाँ से एक रिवर्सल आई तो मैंने यहाँ पे एक पोजीशंस बनाया था। तो 20% का मैंने यहाँ से गेन लिया था ऑलमोस्ट। ओके, तो यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे मैं निकल गया था, 20% का गेन था। ठीक है, तो अभी क्या अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, तो एक तो देखिए कि ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रेस्पेक्ट कर रहा था बार बार, बट अब इसने ये ट्रेंड लाइन को, इट हैज ब्रोकन दैट ट्रेंड लाइन, एंड इसी ट्रेंड लाइन को इट इज बिहेविंग लाइक अ सपोर्ट ऑल्सो। सो अब यहां से क्या हो सकता है, एक तो आपको मैं लॉन्ग टर्म के परस्पेक्टिव से अगर बात करूं, तो आप अगर एक बार इस रेजिस्टेंस लेवल को आप टूटने का वेट कर लो, उसके बाद यू हैव टू मेक द पोजीशन। सो इफ यू टॉक इन परसेंटेज टर्म्स, तो अगर आप यहाँ पे एक बार इसको ब्रेक करने का वेट करो विथ हैवी वॉल्यूम्स, और उसके बाद एक रीटेस्ट का वेट करो, उसके बाद आपको यहाँ पे पोजीशंस बनाने हैं, तो यहाँ से आपका सीधा सीधा टारगेट निकल करके आता है 72% का। बट अभी अगर आप इसमें पोजीशन बनाते हो, तो आपका यहाँ से सीधा सीधा डबल की अपॉर्चुनिटी नजर आती है मुझे। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से सीधा सीधा 105% का टारगेट है करंट प्राइस से, करंट मार्केट प्राइस से। तो ये एक चीज हो गई। उसके बाद अभी अगर आप छोटे टाइम के लिए ट्रेड करना चाहो लाइक स्विंग ट्रेड, तो यू हैव सम अपॉर्चुनिटीज लाइक, अगर आप यहाँ पे एक और वॉल्यूम्स देख सकते हैं आप, वॉल्यूम्स कितना ज्यादा है। सो दीज हैवी वॉल्यूम कैंडल shows nothing but the active buying and sellings of the institutions or any FPIs or any bulk deals. So the institutions or big players are interested in this company, and why not they should be. So इतना ज्यादा जब कंपनी का बहुत ज्यादा मतलब रेवेन्यू में भी लगातार इंक्रीज है, इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी है, इतने अच्छे नेट प्रॉफिट्स आए हैं, तो क्या मतलब इस शेयर में इन्वेस्ट करने का एक रीजन भी हमारे पास एक रीजन भी ऐसा नहीं है कि हम इस शेयर में इन्वेस्ट ना करें। ठीक है, तो अगर आपको ट्रेड करना है तो आप इस लेवल के एक बार ब्रेक होने का वेट करो। ये जो यहाँ पे एक मैं बॉक्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ओके, तो इस रेजिस्टेंस लेवल का वेट करो टूटने का, उसके बाद आप एक छोटी सी पोजीशंस ले सकते हो यहाँ पे। तो वो क्या निकल करके आती है, तो वो आपका यहाँ पे 8-9% का आपको गेन देखने को मिल जाएगा इस लेवल तक का। ठीक है, उसके बाद बाकी पोजीशंस आप इस लेवल को ब्रेक होने के बाद एक रिटेस्ट का वेट करो, देन आप यहाँ पे बाकी पोजीशंस ऐड करना। ठीक है, and one more thing I would strongly recommend you to do, and I'm talking with my own experience, that if you're in the space of stock market, then the thing you should learn first is to wire your psychology with respect to the market sentiments and behave accordingly. That is, don't panic or fearful too early, and don't be greedy too overwhelmed too early. It may affect your trading decisions, and you will end up losing your entire money, and in the worst cases you can even blow up your account as well. So first, have your proper understanding with the market along with some good learnings about the market, and meanwhile you can
can read some good books on psychology or other books like one book that I would like to suggest you. It is Trading in the Zone. That is by Mark Douglas, I guess. Yes, Mark Douglas, and you can read that whole lot of books available in the market. So that would wire your psychology as per the market sentiments, and you have to act accordingly with that. So when others are fearful, you won't be too fearful, and when others are greedy, you won't be too greedy. You have to behave in contrary of that. So that's it for today. So कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई अच्छी लर्निंग के साथ, एक नए पोजिशनल या स्विंग ट्रेड के स्टॉक के साथ. तब तक के लिए गुड बाय.